Okay, so I hope the screen is visible to everyone. Okay, so in last lecture I already defined this directional derivative. Okay, so what is the meaning of directional derivative? Directional derivative, a projection of one vector on the other vector. So it is simply a projection of say vector a bar on b bar. Okay, and that is defined as a bar dot with a b cap. जिस वेक्टर के ऊपर आप प्रोजेक्शन ले रहे हो उसका आपको यूनिट वेक्टर कंसिडर करना है. बट हियर इंस्टेड ऑफ दिस a bar we consider here del phi, so it become projection of del phi on some other vector, let us call say b bar or a bar. ठीक है, and then it become del phi dot with b cap. ठीक है, so this is the definition of directional derivative. So in general, how we write directional derivative? So the definition of directional derivative is this. So directional derivative is actually equal to the del phi at point p dot with a cap. Simply the projection of this vector del phi on vector a bar. Okay, now let us focus here on this next question. So question क्या है? For what values of a, b, c the directional derivative of this phi, correct, at a point has maximum magnitude. Okay, so in which direction you will get the maximum value of directional derivative? Yes, what is the maximum magnitude of directional derivative? In which direction you will get the maximum magnitude? Anyone? Normal direction. Normal direction. Okay, or in the direction of del phi itself. Okay, so that is nothing but modulus of del phi. Okay, this gives you the maximum magnitude, है ना, उसी डायरेक्शन में. जिस मतलब किसी भी वेक्टर का अगर आप प्रोजेक्शन ले रहे हो उसका सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड कहाँ पे आने वाला है? उसी डायरेक्शन में, ऑन द सेम डायरेक्शन. Okay, so that is given, that maximum magnitude is given, but and that is in the direction of parallel to x-axis. Okay, so can you tell me how we write this statement mathematically? Anyone? The directional derivative of phi, correct, at 111 has a maximum magnitude of 4 in the direction parallel to x-axis. Yes, how we write this? Yes, so okay, it's better that let me show you one theory example on this. समझ में आ जाएगी. That example is also there. ये मैंने लिया है शायद थियरी में भी. तो क्योंकि एक सिमिलर क्वेश्चन मैं ले ही लेता हूँ, इसके बहुत सारे फॉर्म है. हाँ, 1 मिनट, कोई भी एक इजी ले लेता हूँ मैं. ओके, सो आई होप दिस स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन. ओके, यहाँ से आप देखो, फिर आपको समझ में आ जाएगा. इट इज सिमिलर क्वेश्चन. ठीक है, यहाँ पे डिटेल में सोल्यूशन है. इफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई which is equal to x y plus by z plus cz x at 111 has a maximum magnitude of 4 in the direction parallel to x axis, and from this statement we have to find the abc. ठीक है, so okay, so del phi का फॉर्मूला आपको पता ही है. del phi is what? Differentiate this phi, है ना. del phi is what? Differentiate this phi with respect to x. Okay, that is this into I bar. Differentiate phi with respect to y, that is this into j bar. Differentiate phi with respect to z into k bar. Now calculate this del phi at point 111. So calculate this del phi at point 111. Now what is given? What is given? As we know that directional derivative is a maximum in the direction of del phi. ये आपको पता है. ठीक है, but from given it is maximum in the direction of u bar. Okay, which is parallel to x-axis. ठीक है, therefore the direction of del phi and u bar must be same. So what this implies? What this implies? These two vectors are equal. ठीक है, it has equal magnitude, equal direction, so you will get this. Is this clear or not? आपको क्या गिवन है? जो आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव है, that is so it is maximum in the direction of u bar, okay, parallel to x-axis. So here I consider the unit vector parallel to x-axis, that is exactly equal to this del phi, यूनिट वेक्टर ऑफ del phi. तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि आपको पता है इस वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड 1 है. a bar अपॉन मॉडुलस ऑफ a bar, ठीक है, has unit magnitude. This vector has also magnitude 1. So magnitude equal, it has same direction, है ना, because that directional derivative is maximum in the direction of parallel to x-axis. ठीक है, तो parallel to x-axis जो आपका वेक्टर आता है that is similar to this directional derivative vector.
therefore these two vectors has equal direction, and if I consider the corresponding unit vector, then we can say that it has equal magnitude. What that implies, these two vectors are same. This is the result for a bar is equal to b bar. When we say that a bar equal to b bar, it must has the equal direction and magnitude. Then only we can say that these two vectors are equal. Okay, so from this del phi जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था अपॉन मॉडुलस ऑफ del phi, ठीक है. सो मॉडुलस ऑफ del phi क्या है, नीचे एक्चुअली क्या आने वाला है, 4 आने वाला है, बिकॉज दैट इज गिवन, दैट मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आपको क्या गिवन था, दैट मैक्सिमम मैग्नीट्यूड इज 4, सो दैट इज गिवन, एंड इट इज इक्वल टू u bar is a vector which is parallel to x axis. So we know that any vector which is parallel to x axis is I cap. Okay, but here we have to consider unit vector, इसलिए यहाँ पे मैं cap दे रहा हूँ. So these two things are equal. That implies this is equal to 4 into I, correct? This is equal to 4 into I. And now just compare, and we know the definition for two vectors to be equal. That is a1 I bar plus a2 j bar plus a3 k bar. When we say that these two vectors are equal, a b1 I bar, b2 j bar, b3 k bar, and when we say that these two vectors are equal, then that implies a1 must be equal to b1. मतलब coefficient of I bars are equal, coefficient of j bar are equal, and coefficient of k bar are equal. Okay, so that implies your a plus c must be equal to the coefficient of I bar equal to coefficient of I bar, which is 4, correct? A plus b must be equal to 0 as there is no coefficient of j bar, so and then b plus c is also equal to 0. So just solve this system, you will get the values for a, b and c. Okay, so in a similar way now we have to approach that question. So अभी इसी डायरेक्शन में आपको एक और बार ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ. Still if you have any doubt you can ask me directly. So what is given, the first thing is what, the directional derivative of this as at 1 1 1 has a maximum magnitude which is 4. ये आपको given है. उन्होंने क्या बोला है, first tell me what is the maximum magnitude of directional derivative. So the maximum, मैं एक और बार आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद आप पूछो अगर कोई डाउट आते तो. So maximum magnitude of directional derivative, that we know that it is equal to modulus of del phi, and that is given which is 4. ठीक है, and what is given, a vector which has a maximum magnitude, okay, a vector which has a maximum magnitude is exactly equal, which is parallel to x axis, means is exactly equal to a vector which is parallel to x axis. तो मैं ये एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, और क्या गिवन है, a vector which has maximum magnitude, ठीक है, in the direction of instead of this maximum magnitude of directional derivative which is equal to mod del phi which is equal to 4. Okay, अभी मुझे यहाँ पे क्या लिखना है एक्चुअली, the maximum vector which has maximum magnitude, okay, a vector which has maximum magnitude is exactly equal to a vector parallel to x axis. ठीक है, ओके, तो अनुभव मैग्नीट्यूड भी आपको पता है, दैट मैग्नीट्यूड इज 4. ठीक है, वट एवर द वेक्टर इज देयर विच हैज अ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ डेल फाई, ओके, दैट मैग्नीट्यूड इज ऑलरेडी गिवन विच इज 4. ये आपको ऑलरेडी गिवन है, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज ऑलरेडी गिवन. ओके, नाउ यू हैव टू मेक दिस टू वेक्टर टू बी इक्वल, है ना. आपको पता है किसी भी व्हेन वी से दैट टू वेक्टर्स आर इक्वल, when we say that these two vectors are equal vectors के definition क्या है, they must have equal magnitude, and their directions are equal. A bar and B bar have same direction. ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है क्योंकि वो मैग्नीट्यूड आपको गिवन ही है. दोनों का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड क्या है, 4. अभी बस मुझे डायरेक्शन, ओके, हाँ, एंड डायरेक्शन भी क्या है, इक्वल है क्योंकि पैरेलल टू.
Okay, so what I can write here, the del phi, which is the vector which has a maximum magnitude in the direction of del phi itself. Okay, so del phi upon modulus of del phi is exactly equal to a vector which is parallel to x axis, consider I cap. यहाँ पे मैंने इसका मॉडुलस नीचे क्यों लिया है, क्योंकि ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है, आपको एडजेंट क्या एडजस्ट करना है, दे मस्ट हैव द सेम मैग्नीट्यूड. ओके, एंड देन आपको क्या मैनेज करना है, दे मस्ट हैव द सेम मैग्नीट्यूड. इसलिए आप डायरेक्टली डेल फाई, वी कांट टेक डेल फाई इज इक्वल टू आई बार. ठीक है, ये पॉसिबल नहीं क्योंकि आई बार का मॉडुलस 1 होता है, इसलिए आपको इसका यूनिट वेक्टर कंसिडर करना होगा. सो डेल फाई अपॉन मॉडुलस ऑफ डेल फाई विच इज इक्वल टू आई बार. नाउ जस्ट पुट ऑल दिस वैल्यूज. व्हाट इज गिवन, डेल फाई इज गिवन, डेल फाई एट पॉइंट है, सब कुछ पॉइंट पे ही चल रहा है, एट पॉइंट पी. दिस इज आल्सो एट पॉइंट पी. ओके, नाउ जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ डेल फाई एट पॉइंट पी विच इज a प्लस सी आई बार प्लस a प्लस b j बार प्लस b प्लस c k बार divided by that maximum magnitude. It is a maximum magnitude equal to I cap. ठीक है, now just compare the coefficient. You can shift this 4 on right hand side and then you can compare the coefficient. Then what this implies, your a plus c must be equal to 4. ये आगे शिफ्ट करके मैं लिख रहा हूँ, a plus c equal to 4, then a plus b equal to 0. Same equation हुआ, b plus c is equal to 0. Now tell me which option is correct. Tell me a option which satisfies these three conditions. Just tell me option C. this condition. So C. You can check A और C के addition 4 आ रही है और बाकी other combinations are 0. तो ये सबसे important statement है. Okay, if we have given a vector, a maximum magnitude. If we have given a vector which has a maximum magnitude 4 in the direction parallel to some other vector, तो उस केस में ये दोनों चीज़ें इक्वल आती है. ठीक है, और कोई एग्जांपल है तो मैं देख लेता हूँ उसमें. आगे है, सर माय फ्रेंड इज वेटिंग, प्लीज एडमिट. ठीक है, तो बस ये एक स्टेटमेंट पे ही आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, इसका रीजन आपको समझ में आना चाहिए. ठीक है, इसमें बस क्या याद रखो, फर्स्ट विच वेक्टर हैज अ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड डेल फाई. डेल फाई एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड विच हैज अ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ डेल फाई इटसेल्फ. ठीक है, तो यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड गिवन है 4, एंड व्हाट इज गिवन, दैट वेक्टर इज एक्जैक्टली इक्वल टू अ वेक्टर विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. देन वी कैन कंपेयर दिस टू वेक्टर. बट जब भी आप कंपेयर करोगे आपको ये भी इंश्योर करना है कि दोनों का मॉडुलस सेम आना चाहिए. इसलिए डेल फाई का मॉडुलस मैंने 1 में, मतलब आपको पता है किसी क्या करो, उस वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करो तो मॉडुलस 1 आ जाएगा ऑटोमेटिकली. तो मैंने डेल फाई को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट किया है, तो दैट बिकम डेल फाई अपॉन मॉडुलस ऑफ डेल फाई. आई बार आपको पता है विच इज अ वेक्टर विच हैज अ यूनिट मैग्नीट्यूड. ओके, सो आई कैन इजीली टेक दिस डेल फाई अपॉन मॉड डेल फाई इक्वल टू, जस्ट 1 मिनट, आई बार, आई कैप. ठीक है, ओके. Now next is the directional derivative of phi at point. You can try this next example now. आप ही बोलो मुझे क्या है. The directional derivative of phi at 2 1 minus 1 has maximum value. ये पहले याद रखो कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आती है, डेल फाई के ही डायरेक्शन में आती है. मतलब डेल फाई का जो मॉड्यूलस होगा दैट इज योर मैग्नीट्यूड. So directional derivative of phi at this has maximum value in the direction of which vector? बोलो. Directional derivative has maximum value in the direction of what? बोलो. Which vector? Which vector which has a maximum magnitude? Yes. आंसर क्या है इसका आंसर क्या है? डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कौन से डायरेक्शन में आता है, कौन से वेक्टर के डायरेक्शन में आता है? एक्स. हाँ, सॉरी, एक्स डायरेक्शन. नहीं, ये प्रीवियस क्वेश्चन में गिवन था. डेल फाई कैप गिवन था कि Del ये phi जो cap. दिस इज इक्वल टू पैरेलल. हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि यार, ये स्टेटमेंट फिर से इरेज करता हूँ कि मैं अदर लैंग्वेज में लिखता हूँ, आपको
नहीं समझ में आ रहा है, सो नो नीड आगे जाकर जाने में कोई लॉजिक नहीं। अब आप अच्छे से देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। स्टेटमेंट अच्छे से फोकस करो। डायरेक्शनल डेरिवेटिव हैज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, ओके, वेक्टर में, ठीक है, वो रिवर्स कर देते तो आपको अलग लैंग्वेज में आप लिखो। डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैक्सिमम मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ, पहले तो मुझे ये बोलो इन जनरल डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कौन से डायरेक्शन में आता है। आपको मैंने एक डायग्राम दिखाई थी लास्ट इसमें, जहाँ पे एक, हाँ, ये डेल फाई वेक्टर था, फिर आप ए बार एक वेक्टर लेते हो, ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या आता है, ये आ जाता है, ठीक है। जब आप ये एक वेक्टर लेते हो तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ये आ जाता है, जब आप ये वेक्टर लेते हो तो यहाँ पे ये आ जाता है। तो जब आप नीचे नीचे आते हो, मतलब जब आपका वेक्टर एग्जैक्टली इक्वल टू डेल फाई आता है, तब आपको मैक्सिमम मैग्नीट्यूड मिलता है। तो इन जनरल रिजल्ट क्या है, दिस इज द इन जनरल रिजल्ट, ओके। डायरेक्शनल डेरिवेटिव हैज अ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ डेल फाई। ये एक ऐसा वेक्टर है जिसके डायरेक्शन में आपको मैक्सिमम मैग्नीट्यूड मिलता है। इस क्वेश्चन में क्या गिवन था कि दिस वेक्टर इज एग्जैक्टली इक्वल टू अ वेक्टर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अभी मुझे पहले इतना बोलो, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? इज दिस क्लियर? क्वेश्चन में क्या गिवन था? यस सर। हाँ, ओके। अदर स्टूडेंट भी फोकस है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन है। हाँ, तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन था कि ये जो वेक्टर है, दिस इज ए वेक्टर इज एग्जैक्टली इक्वल टू अ वेक्टर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो मैंने क्या किया है, अभी आपको पता है कि दोनों वेक्टर की डायरेक्शन इक्वल है, ओके। जब दोनों को इक्वल लिखना है तब मुझे उनका मॉडुलस भी एडजस्ट करना होगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इस डेल फाई को मैं यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करता हूँ। सो डेल फाई अपॉन मॉडुलस ऑफ डेल फाई एंड वेक्टर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। व्हाट इज द यूनिट वेक्टर? व्हाट इज द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, व्हिच इज आई बार। नाउ आई कैन कंपेयर दिस टू वेक्टर, क्योंकि ये गिवन ही है आपको। बट इक्वल लिखने से पहले मुझे दोनों का मॉडुलस भी इक्वल करना होगा। मतलब अगर मैं ये बोल देता हूँ कि ए बार एंड बी बार हैज सेम डायरेक्शन, ठीक है, पैरेलल, दिस टू आर पैरेलल वेक्टर। बट जब भी मुझे ए बार इक्वल टू बी बार लिखना है, तो मुझे क्या इंश्योर करना होगा, मॉडुलस ऑफ ए बार मस्ट बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी बार। उसके लिए बस स्टेटमेंट है स्टार करके जो दिया है। देन बाय जस्ट कंपेयरिंग यू विल गेट द वैल्यूज, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, हियर वी हैव टू फाइंड अ वेक्टर which has a maximum value, okay, vector of directional derivative, okay, which has a maximum value. So tell me now for this, simply a directional derivative, सर बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। ये वेक्टर क्या था, डेल फाई आता है। डेल फाई इज द ओनली वेक्टर which has a maximum value in the direction of del phi itself. So del phi तो del phi कैलकुलेट करो। So I think आपने किया भी है। So which is equal to डेल फाई कैसे कैलकुलेट करने, फाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स से डिफरेंशिएट करो, 2x y z क्यूब इंटू आई बार प्लस विद रिस्पेक्ट टू y करो एक्स स्क्वायर z क्यूब इंटू जे बार विद रिस्पेक्ट टू z करो। मैं क्विकली कर रहा हूँ 3x स्क्वायर y z स्क्वायर इंटू के बार। नाउ जस्ट पुट 1 2 1 एंड -1। क्या आंसर मिल रहा है? बी वेक्टर है क्या? Yes, sir. B. ओके ओके, दिस इज योर आंसर। सो -4i मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, -4j प्लस 12k बार। ओके ओके, थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है अभी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई हैज अ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड 2, तो इसका मतलब डेल फाई मॉडुलस गिवन है, ओके, अलोंग एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव हैज मैक्सिमम वैल्यू इन दी डायरेक्शन ऑफ डेल फाई। ये आपका इन जनरल रिजल्ट है। बट दिस वेक्टर इज एग्जैक्टली इक्वल टू अ वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। तो अ वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। हाँ, सो बट इन दोनों को इक्वल करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या कंडीशन डालनी होगी, डेल फाई डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ डेल फाई। सो it has a unit magnitude is equal to a unit vector in parallel to x axis is I cap. Now just compare करके tell me which option is correct. सर 2i कैप। क्या आंसर, सी या ऑप्शन सी सी सी? ठीक है, आप इजीली वर्कआउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन, नाउ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई एट 103, क्या कैलकुलेट करना है? और यू कैन टेल मी डायरेक्टली आंसर।
क्या है वो वैल्यू? डेल फाई का मॉड्यूलस. सो जस्ट कैलकुलेट दिस और मुझे बोलो आंसर क्या है. डू इट. डू इट. टेल मी व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट. एक बार एक्स से B sir option sir B option. बी ऑप्शन. ठीक है. ऑथर प्लीज चेक दिस. मैं आपको इंट दे रहा हूँ अभी, इसके सारे इन डिटेल सॉल्यूशन नहीं देने वाला. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. एंगल बिटवीन द सरफेसेस. ये शायद मैंने लिया था ना, ये हो गया था ना हमारा, यही कुछ तो आंसर है आई थिंक. हाँ सर हो गया था. हाँ, वी ऑलरेडी कवर्ड दिस. ये भी हो गया था. आप एक बार देखो. ये कुछ क्वेश्चन मुझे याद नहीं था तो मैंने रिपीटेशन में डाले होंगे शायद. When you have taken this, yes or no? Two surfaces are orthogonal. Then A equal to orthogonal of this. Okay. If not, then I will do it. Okay. If two surfaces are orthogonal, then means angle between these two surfaces is 90 degree. Okay. But angle between two surfaces is nothing but normals. So just calculate del phi 1. है ना? With respect to x differentiate करो. Y z into I bar with respect to y differentiate करो. ये हो गया है शायद. J bar with respect सर हुआ है. हाँ. ओके. सो इट इज ऑल्सो. मैं स्किप करता हूँ क्वेश्चंस इस शीट से क्योंकि ये ऑलरेडी इसका सोल्यूशन मैंने दिया आपको पीछे. ओके. ठीक है. सो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट डायरेक्शनल डेरिवेटिव एंड दिस थ्योरी क्वेश्चंस आर ऑल्सो जस्ट 1 minute. Questions also help you to understand this topic. You can go through this. ठीक है. तो इसमें बेसिकली क्या क्या चीज़ें आपको याद रखने कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव के मैक्सिमम वैल्यू कौन से वेक्टर के डायरेक्शन में आते हैं, डेल फाई के डायरेक्शन में आते हैं. आपको कभी कभी क्या होता है विच इज इक्वल टू अ वेक्टर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वेक्टर पैरेलल टू वाई एक्सिस, वेक्टर पैरेलल टू जेड एक्सिस. ऐसी चीज़ें आने वाली कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू कैलकुलेट करो. ये एक पार्ट आता है. या तो डायरेक्टली डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू कैलकुलेट करने का पार्ट आता है. या तो कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं. ओके. Direction derivative of this in the direction of this vector, direction derivative of this in the direction of this vector. Okay, second line. तो ये सारी चीज़ आपको एग्जाम में है, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी है. अभी एमसीक्यूज में उन्होंने नहीं दिया है. ठीक है. निराली के एमसीक्यूज में नहीं है बट अदर एमसीक्यूज में आप सर्च करो. ये जो थियरी क्वेश्चन है दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एमसीक्यूज. कांट स्किप दिस. ठीक है. सो प्लीज गो थ्रू दिस. कुछ नहीं, बस अलॉन्ग अ वेक्टर चेंज होगा. अलॉन्ग अ वेक्टर अगर लाइन का इक्वेशन आता है तो नीचे के जो नंबर्स आते हैं दैट इज योर वेक्टर्स. ठीक है. इतना नहीं लेंदी होगा नॉर्मल टू दिस सरफेस, इतना नहीं होगा. ओके. बट ये ऐसी चीज़ें आ सकती है आपको. डायरेक्टली एक तो वेक्टर गिवन होगा या तो लाइन का इक्वेशन गिवन होगा. तो लाइन का इक्वेशन अगर आपके पास आ जाता है तो उससे वेक्टर कैसे कैलकुलेट करना है, जो नीचे के नंबर से उनसे आपको वेक्टर फॉर्म करना है. इफ यू वांट आई विल जस्ट शो यू दैट क्वेश्चन हियर. सेकंड ये आपको पता है दिस इज योर लाइन, देन वट एवर द कोएफिशिएंट इज देयर इन द डिनोमिनेटर फ्रॉम दैट यू कैन कंस्ट्रक्ट अ वेक्टर अलोंग दिस लाइन. ठीक है. तो अभी आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, फाइंड अ डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर. ठीक है. तो ये वेक्टर आप पहले कैलकुलेट करो. तो यहाँ पे अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 ये लाइन का इक्वेशन था. यहाँ से 2 नीचे आपको एडजस्ट करना था, 2 से डिवाइड करो. सो यू विल गेट 1 2 2 इन द डिनोमिनेटर. सो योर वेक्टर बिकम आई बार 2j बार 2k बार. इसका यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करो विच इज दिस. नाउ मल्टीप्लाई डेल फाई with now take a dot product of del phi with this unit vector, that will be your final answer. ये भी क्वेश्चन आपको एज ए एमसीक्यू आने वाले. ठीक है. इतने भी लेंथी क्वेश्चन आपको आते हैं. सो प्लीज गो थ्रू दिस. इसके बाद कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें, मतलब दिस इज इनफ. सारे वैरायटी के कवर हो जाएंगे. ओके. एंड ये ऑलरेडी हमने लिया है, कवर किया है. ओनली 1 पॉइंट इज रिमेनिंग दैट I will take. Okay. Divergence of vector. Okay. Nothing but dot product of del and f bar. Okay. So which is here. And we know that if okay मैं ले लेता हूँ quickly. ये हो चुका है, बस एक बार मुझे रिवाइज करना है और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी है. So del dot f bar is 0. Then we call that vector field to be solenoidal vector field. Okay. In a vector calculus, a solenoidal vector field is also known as incompressible vector field, a divergent free vector field, or a transverse vector field is a vector field V with a divergence 0 at all points in the field. ठीक है.
So the common way of expressing this property is to say that the field has no source or link sinks. ठीक है, the field lines of solenoidal vector field are either closed loops or end at infinity. Okay, you can see this diagram. ठीक है, these are the basic thing regarding this solenoidal vector field. Okay, these are the examples. I will not go in detail about this. Similarly, curl of vector del cross f bar is your curl which is calculated by this formula. ये भी हमने लिया था, एग्जाम्पल भी हमने लिए थे, बट इसमें एक और रिजल्ट है, वही मुझे एक्सप्लेन करना है. एंड वी नो दैट इफ del cross f bar is 0 then that vector field is called as irrotational vector field, and there is one more word which is conservative vector field. This is also over. ये सारी चीजें हो गई हमारी. हाँ, this is the new point. ये मैंने नहीं लिया था. Okay, so here I star this. Okay, now see the result. If your vector field is irrotational vector field, okay, if your vector field, then there exists a scalar function phi. वहाँ पे आप phi कैलकुलेट कर सकते हो such that given vector field is exactly equal to del phi or grad phi. This is the strong result related with the irrotational vector field. Okay, result क्या है कि if your f bar is irrotational vector field, vector field, then there exists scalar phi such that vector field is exactly equal to del phi. ठीक है, which satisfies this relation. ये आपको 1 मार्क के लिए आने वाले क्वेश्चन. Now our question is what? How you calculate this phi? ऐसा exist होता है, okay, but how you calculate, how you mathematically you calculate this phi? तो उसके लिए एक फॉर्मूला है. ठीक है, so I will explain that formula first. ये प्रूफ है, but no need to go in detail. Okay, suppose your vector field f bar is this: f1 into I bar, f2 into j bar, and f3 into k bar. And this vector field is irrotational vector field. Then there exists a phi such that which satisfies this condition. And what is the formula for phi? तो वो phi आपको कैसे कैलकुलेट करना है, ये एग्जाम में आने वाला है आपको. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. फाई कैसे कैलकुलेट करना है? जो आपका f1 है, मतलब आई बार का जो कोएफिशिएंट है ना, उसको इंटीग्रेट, टेक द इंटीग्रेशन ऑफ दिस f1 विद रिस्पेक्ट टू x वेयर y एंड z आर कांस्टेंट. सिंपली करना क्या है, y को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x से. इसके क्वेश्चन में लेने वाला. ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट, जो आपका f2 है, सो फ्रॉम f2 जस्ट कंसिडर दोज टर्म्स विच इज फ्री फ्रॉम x. फ्री फ्रॉम x मीन्स डोंट टेक अ टर्म विच कंटेन x. तो f2 में से आपको ऐसे टर्म्स कलेक्ट करने विच आर फ्री फ्रॉम x. ठीक है, एंड देन इंटीग्रेट दैट f2 विद रिस्पेक्ट टू dy. एंड वाइल इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, आपका z क्या होगा, कांस्टेंट होगा. एंड थर्ड में प्लस करके टेक द इंटीग्रेशन ऑफ f3 विच आर फ्री फ्रॉम x एंड y. f3 में से ऐसे ही टर्म्स कलेक्ट करो, ओके, विच आर फ्री फ्रॉम x एंड y. ओके, वेयर द x टर्म एंड y टर्म्स आर एब्सेंट. ऐसे टर्म्स कलेक्ट करो विच आर फ्री फ्रॉम x एंड y, मतलब z के ही चाहिए सिंपली. ठीक है, एंड देन इंटीग्रेट दैट f3 विद रिस्पेक्ट टू z. ओके, एंड दैट गिव्स यू प्लस c है, यहाँ पे इंटीग्रेशन प्लस c है, आर्बिट्री कांस्टेंट, दैट गिव्स यू योर फाई. तो ये आपको 1 मार्क के लिए ऐसे क्वेश्चन आने वाले, मतलब f बार गिवन होगा आपको, एंड दैट f बार इज अ इरोटेशनल वेक्टर फील्ड, एंड फ्रॉम दैट वी हैव टू जस्ट फाइंड द स्केलर पोटेंशियल फाई. सो जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला. f1 को डायरेक्टली इंटीग्रेट करना है, f2 में से ऐसे टर्म्स कलेक्ट करो विच आर फ्री फ्रॉम x, f3 में से ऐसे टर्म्स कलेक्ट करो विच आर फ्री फ्रॉम x एंड y. ओके, विल टेक एग्जांपल्स ऑन दिस पार्ट आल्सो. दिस इज वन प्रॉपर्टी रिलेटेड विद द इरोटेशनल वेक्टर फील्ड. ओके, अदरवाइज सारी चीजें मैंने कवर की है. ठीक है, एंड देयर इज वन मोर रिजल्ट दैट आई नीड इन नेक्स्ट चैप्टर. Conservative vector field have the property that a line integral, this is our next section, a line integral is path independent. मतलब क्या होता है कि whatever the work done is there from this path and from this path, both are equal. This is your W1, this is your W2. So if your vector field is irrotational, then it is what? Then it is path independent. Then the line integral is पाथ इंडिपेंडेंट. ये भी रिजल्ट मुझे आगे चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको एक्सप्लेन किए. वन इज इफ इट इज इरोटेशनल देयर एग्जिस्ट अ स्केलर पोटेंशियल फाई विच सैटिस्फाइज दिस कंडीशन. हाउ यू कैलकुलेट दिस यूजिंग दिस फॉर्मूला. नेक्स्ट क्या है कि इफ योर वेक्टर फील्ड इज इरोटेशनल
राइट नाउ यू डोंट नो व्हाट इज लाइन इंटीग्रल, आपको नहीं पता कि लाइन इंटीग्रल होता क्या है, ठीक है। या आगे एक और बार मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बट राइट नाउ जस्ट रिमेंबर, ट्राई टू रिमेंबर द स्टेटमेंट्स। इफ इट इज इफ यू हैव गिवन इरोटेशनल वेक्टर फील्ड देन योर लाइन इंटीग्रल इज पाथ इंडिपेंडेंट, ओके। और कैसे ये सब कुछ होगा मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ बाद में, ठीक है। एंड दिस वी नीड फॉर नेक्स्ट चैप्टर, ओके। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड, दिस आर द एग्जांपल्स, ओके। Yeah, so we'll take one example on this phi and then we'll move to the next section. फिर एग्जाम्पल है बट इसमें से भी वो कवर हो जाएगा, ओके। सो हियर वी हैव गिवन दिस एफ बार टू बी इरोटेशनल वेक्टर फील्ड, सो दैट आप ये एमसीक्यू एज्यूम करो। हियर वी हैव गिवन दिस एफ बार टू बी द इरोटेशनल वेक्टर फील्ड एंड वी हैव टू फाइंड अ स्केलर पोटेंशियल फाई व्हिच सैटिस्फाइज दिस, ओके। ये आपका क्वेश्चन है। सो व्हाट इज द फार्मूला फॉर फाई, मैं पहले फार्मूला लिख लेता हूँ। सो फाई इज इक्वल टू व्हाट, टेक द इंटीग्रेशन f1 with respect to x where y and z are constant plus terms in f2 free from x dy and where z is constant. Now terms in f3 free from x and y dz, ओके। अभी यहाँ पे कांस्टेंट का पार्ट नहीं आने वाला, ओके। सो यूज दिस फॉर्मूला, कैन एनीवन टेल मी व्हाट वी हैव टू राइट नेक्स्ट। पहले तो मैं लिख लेता हूँ f1, ये आपका f1 है, ठीक है। सो 6xy प्लस जेड क्यूब को मुझे डायरेक्टली इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x प्लस सी है, एंड वेयर y and z are constant. Can anyone tell me the next integral? So tell me the terms in f2 which are free from x. Yes, tell me. minus z. Minus z, this is the only term which is free from x into dy and z is constant. Now tell me the terms in f3 which are free from x and y. सर कुछ नहीं सर, 0 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में भी x आ रहा है, सेकंड में भी x एंड y का टर्म्स आ रहे हैं, सो इट इज 0, सो जस्ट dz प्लस c एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो क्या इंटीग्रेशन आएगा, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, सो इट इज 3x स्क्वायर y प्लस z क्यूब कॉन्स्टेंट है बाहर आने वाला है, एंड dx का इंटीग्रेशन x, सो x इंटू जेड क्यूब प्लस अगेन माइनस z इज कॉन्स्टेंट बाहर आने वाला है, एंड dy का इंटीग्रेशन y, सो माइनस z प्लस c, दिस इज द वैल्यू ऑफ पाई, ठीक है। ऐसे एमसीक्यूज आपको है और मैं भी लेने वाला हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में शायद ये हो जाएंगे, ठीक है, ओके। तो ठीक है, सो नाउ आई ये थ्योरी की पीपीटी है इसलिए थोड़ा बहुत मुझे जंप करना पड़ता है इन बिटवीन से, या हाँ। नाउ दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स दैट वी नीड, ओके। अभी इसके आगे तो अभी तक हमने क्या कंप्लीट किया, पहले मैं आपको वो एक बार क्विकली रिवाइज करके देता हूँ। स्टार्टिंग में हमने वेक्टर डिफरेंशिएशन टॉपिक लिया था, वेक्टर का डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करना है। फिर उसके बाद मैंने डाइवर्जन, कर्ल एंड ग्रेडियंट पार्ट एक्सप्लेन किया था, उनके कुछ रिजल्ट थे, उनके कुछ एग्जाम्पल्स थे। लास्ट लेक्चर में मैंने डायरेक्शनल डेरिवेटिव टॉपिक इंट्रोड्यूस किया था, उसके सारे एग्जाम्पल भी हमने कंप्लीट किए, क्या क्या पॉसिबल एग्जाम्पल थे फ्रॉम द निराली पर्सपेक्टिव, तो वो भी हो चुका है। नाउ आवर लास्ट सेक्शन फ्रॉम दिस चैप्टर इज द वेक्टर आइडेंटिटीज, बट आई कैनॉट स्टार्ट इमीडिएटली द वेक्टर आइडेंटिटीज, फॉर दैट वी नीड सम बेसिक थिंग्स और बेसिक रिजल्ट्स दैट वी हैव टू यूज while solving the problems on those vector identities. Again, this is one of the difficult topic if you compare with all your 6 units, ठीक है। So it takes some time to understand those operation. Length ज़्यादा नहीं है, hardly 2-3 lines में आपका theory का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है 4 मार्क्स का। So length ज़्यादा नहीं है, बट वो जो formulas identification का पार्ट है वो इसमें इंपॉर्टेंट है, ओके। So we'll go slowly, ओके। तो आपको इजीली ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। अगेन इट्स अ स्कोरिंग यूनिट, ठीक है। अगर आपको परफेक्ट चीज़ें या फॉर्मूले समझ में आ जाते कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो इसमें कुछ डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, ओके। सो लेट अस टेक अ वेक्टर r बार, एज वी नो दैट इट्स अ पोजीशन वेक्टर। सो r बार इक्वल टू x इंटू आई बार, y इंटू जे बार, z इंटू के बार। a बार इज योर कॉन्स्टेंट वेक्टर। कॉन्स्टेंट वेक्टर मतलब ये कोएफिशिएंट जो आते हैं वो नंबर्स आते हैं, ठीक है। नाउ यू हैव टू टेल मी द वैल्यू ऑफ 1 by 1 डेल डॉट आर बार, ओके। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आंसर लिखा है,
बट कैन यू टेल मी व्हाई इट इज 3? व्हाट इज डेल डॉट आर बार? किससे कैलकुलेट करते हो आप डेल डॉट आर बार? एनीवन? डेल डॉट आर बार डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल एंड आर बार। डेल क्या होता है? अगेन लिख लेता हूँ यहाँ पे। डेल क्या होता है? आई इंटू डेबा बाय डेबा एक्स प्लस जे बार इंटू डेबा बाय डेबा वाई प्लस के बार इंटू डेबा बाय डेबा जेड। सो हाउ यू कैलकुलेट डेल डॉट आर बार? बोलो कैसे कैलकुलेट होगा डेल डॉट आर बार? पहले डेल का टर्म लेना है, बाद में आर बार का। यस, व्हाट इज वैल्यू ऑफ डेल डॉट आर बार? ये डायरेक्ट यूज करना है आपको एग्जाम में। बोलो व्हाट इज डेल डॉट आर बार? नेक्स्ट क्या लिखना है मुझे? डेल डॉट आर बार डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा यहाँ पे? यस, डाबा बाय डाबा एक्स ऑफ एक्स डाबा बाय, वेरी गुड, डाबा बाय डाबा एक्स ऑफ एक्स प्लस डाबा बाय डाबा वाई ऑफ वाई एंड डाबा बाय डाबा जेड ऑफ जेड। बट आपको पता है एक्स का एक्स के साथ डेरिवेटिव 1 आता है, वाई का वाई के साथ 1 आता है, जेड का जेड के साथ 1 आता है। सो दैट वैल्यू इज 3। देयरफॉर डेल डॉट आर बार इज ऑलवेज 3। ठीक है, इसका प्रूफ है इस स्लाइड में दैट यू कैन। नाउ टेल मी डेल डॉट ए बार वैल्यू बोलो। डेल डॉट ए बार A1 plus A2 plus A3 डाबा बाय डाबा एक्स ऑफ व्हाट? A1 डाबा बाय डाबा वाई ऑफ A2। double by double Z of A3 हाँ, तो ये क्या आएगा? ये क्या आएगा? 0 as A1 is a constant. So A1 constant का derivative 0. So that value is 0. Therefore del dot A bar is always 0 and del dot R bar is always 3. Remember these two result. Okay. Come to next. ये प्रूफ नहीं आने वाले क्योंकि रेडीमेड आपको मतलब डायरेक्टली एज अ फॉर्मूला आपको यूज करने। या नेक्स्ट इज दिस। नाउ टेल मी डेल क्रॉस आर बार। कैलकुलेट करके थोड़ा बहुत देखना होगा तभी आपको समझ में आएगा। क्या लिखना है मुझे पहले डिटरमिनेंट में? व्हाट इज इन फर्स्ट? सर I J K आई जे के जे बार और सर उसके बाद फिर डाबा बाय डाबा एक्स डाबा बाय डाबा वाई और डाबा बाय डाबा जेड और नीचे आएगा A1 A2 A3। तो सारे कांस्टेंट्स है तो आपने जीरो ही हो जाएगा सब इसमें, तो आ गया जीरो आंसर। ओके। सो सिंस यू इन योर थर्ड रो सिंस ऑल दीज नंबर्स आर कांस्टेंट और आपको पता है कि डिटरमिनेंट जब आप सॉल्व करते हो यहाँ पे तो हर एक कांस्टेंट का यहाँ पे डेरिवेटिव आने वाला है। ओके, सो दैट इंप्लाइज योर वैल्यू इज 0। सो इन जनरल डेल क्रॉस आर बार इज ऑलवेज 0। ठीक है, so no need to do this solving part also. ठीक है, directly you can write. Okay, now next is del cross r bar. मैंने आंसर लिखा है यहाँ पे but you perform it and then tell me. Okay, del cross r bar मैं लिख लेता हूँ I bar J bar K bar next dabba by dabba x dabba by dabba y dabba by dabba z. next tell me third row क्या लिखना है r bar के लिए? थर्ड रो एक्स वाई जेड एक्स वाई आर बार आप याद ही रखो क्योंकि ये वेक्टर आइडेंटिटीज में बहुत बार मतलब उसके ही ऊपर सारे क्वेश्चंस है। नाउ परफॉर्म दिस डिटरमिनेंट एंड टेल मी द वैल्यू। बार परफॉर्म दिस डिटरमिनेंट, ये वाई परफॉर्म दिस डिटरमिनेंट आई बार डाबा बाय डाबा वाई ऑफ जेड क्या आने वाला है? यस, डाबा बाय डाबा वाई ऑफ जेड क्या आने वाला है? अरे 0 0, क्योंकि जब आप y से डिफरेंशिएट करते हो z कांस्टेंट है ना, पार्शियल डेरिवेटिव है। जब आप y से डिफरेंशिएट करते हो z कांस्टेंट होगा माइनस डाबा बाय डाबा z ऑफ y 0 माइनस j बार। ठीक है, डाबा बाय डाबा x ऑफ z 0 डाबा बाय डाबा z ऑफ x 0 प्लस k बार to x 0 with respect to y 0. So your answer is 0. ठीक है, so that value is always 0. So del cross r bar भी 0. ठीक है, next so del cross r bar is also 0. और क्या ये फॉर्मूला में तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ऑलरेडी। डेल ऑफ एफ ऑफ आर इक्वल टू एफ डैश ऑफ आर अपॉन आर इंटू आर बार। ये फॉर्मूला मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ये कहाँ से आया था?
बिकॉज डेल ऑफ एफ ऑफ आर इज ऑलवेज इक्वल टू एफ डैश ऑफ आर इंटू डेल आर। तो इसको हमने सॉल्व करके फिर ये फॉर्मूला निकाला, बिकॉज डेल आर इज एक्चुअली आर बार अपॉन आर। ठीक है, नाउ आई विल कंबाइन इंस्टेड ऑफ दिस, क्या क्या देखा है यू कैन स्टॉप किसी एक प्रॉपर शीट में। सो लेट मी, हाँ ये सारी चीजें मुझे चाहिए व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑन वेक्टर आइडेंटिटीज। तो क्या क्या अभी तक हमने लर्न किया, आप देखो डेल डॉट आर बार ऑलवेज 3, क्योंकि क्या होता है एक्स का एक्स के साथ डेरिवेटिव, वाई का वाई के साथ, जेड का जेड के साथ, देयरफॉर इट इज 3। डेल डॉट आर बार एज ए बार इज अ कांस्टेंट, सो डेबा बाय डेबा एक्स ऑफ ए1 0 आता है तो ये 0 आता है। क्रॉस भी 0 आता है क्योंकि थर्ड रो में सारे कांस्टेंट आ जाते हैं। ये भी 0 आता है क्योंकि रिवर्स हो जाते हैं डेरिवेटिव, एक्स का वाई के साथ, वाई का एक्स का, बिकॉज ऑफ दिस इट इज 0। डेल ऑफ एफ ऑफ आर, इसका तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ये भी रिजल्ट आपको चाहिए। ये जो रिजल्ट मैंने लिखा था, इट इज ओनली फॉर विच वेक्टर्स, दिस रिजल्ट इज डिफाइंड ओनली फॉर विच वेक्टर्स। कैन यू अप्लाई दिस रिजल्ट फॉर दिस? Can you apply this result for such type of a scalar triple product, cross product? Tell me yes or no. No. Why? जब मैंने ये रिजल्ट देखा था, what are the conditions on all these three vectors? तीनों वेक्टर पे क्या कंडीशन थी? इस रिजल्ट के लिए तीनों वेक्टर पे क्या कंडीशन थी? all three vectors are constant vectors. कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, उनके जो कोएफिशिएंट चाहिए ना, वो मुझे क्या चाहिए, रियल नंबर्स ही चाहिए। यहाँ पे जो एक वेक्टर दिखाई दे रहा है डेल बाय डेल, सो इट इज नॉट अ कांस्टेंट वेक्टर, इट इज एक्चुअली ऑपरेटर। ओके, आप देखो इसके कोएफिशिएंट क्या आते हैं, डेबा बाय डेबा एक्स इंटू आई बार, डेबा बाय डेबा वाई इंटू जे बार, देयरफॉर इट इज नॉट अ कांस्टेंट वेक्टर, देयरफॉर यू कैनॉट अप्लाई दिस रिजल्ट फॉर डेल। मतलब जहां पे भी डेल आता है वहां पे सारे प्रीवियस फॉर्मूले आपके फेल हो जाएंगे। ओके, तो इसमें क्या होगा मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं ऐसे केसेस में। सो रिमेंबर, ये जो फॉर्मूला मैंने आपको पहले दिया था, दिस इज ओनली फॉर रियल वेक्टर्स, मतलब वेक्टर्स विच हैज अ कांस्टेंट नंबर इन द कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला आप याद रखो। नेक्स्ट, ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट में स्केलर आप कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हो, एक बार सी के साथ कर सकते हो या वी के साथ एडजस्ट कर सकते हो। ये वेक्टर की बेसिक प्रॉपर्टी है ना, स्केलर आप कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हो। सेम फॉर डॉट प्रोडक्ट, यू कैन एडजस्ट एनीवेयर, यू कैन एडजस्ट विद यू बार, यू कैन एडजस्ट विद वी बार। ठीक है, एंड विल सी दिस पार्ट इन नेक्स्ट लेक्चर। ये क्या होता है इसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करता हूँ। आई थिंक या 2 minutes आर देयर, यू कैन इजीली कंप्लीट दिस। या लास्ट 2 प्रॉपर्टीज ओनली, देन इन द नेक्स्ट लेक्चर आई कैन डायरेक्टली स्टार्ट द वेक्टर आइडेंटिटीज। ओके, यस, कैन यू, हाँ, सो कर्ल ऑफ ग्रेड फाई, ये आपको 1 मार्क के लिए आने वाला एग्जाम है, इसलिए कुछ ज्यादा भी इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। कर्ल ऑफ ग्रेड फाई कैसे कैलकुलेट होगा, कर्ल मतलब डेल क्रॉस, एंड ग्रेड फाई मतलब डेल फाई। तो डेल क्रॉस डेल फाई इज नथिंग बट कर्ल ऑफ ग्रेड फाई। ओके, कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिटर्मिनेंट? कैन वी राइट डायरेक्टली? एनीवन कैन यू ट्राई दिस? ये आपका एक वेक्टर है ए बार क्रॉस वी बार, मुझे डिटरमिनेंट में लिखना है। फर्स्ट रो में तो आई बार, जे बार, के बार। एनीवन प्लीज टेल मी सेकंड रो, Dabba by dabba. वेरी गुड, डेबा बाय डेबा एक्स, डेबा बाय Dabba डेबा by वाई, dabba. डेबा बाय डेबा जेड। कैन यू टेल मी थर्ड रो? टेक योर टाइम और टेल मी थर्ड रो। डेल फाई के कोएफिशिएंट मुझे चाहिए, टेल मी थर्ड रो। Del phi by del x. वेरी गुड, डेल फाई बाय डेबा एक्स, डेबा फाई बाय डेबा वाई, डेबा फाई बाय डेबा जेड। अभी बस आई के लिए कैलकुलेशन कर लेते, तब आपको समझ में आएगा कि सारे केस में 0 क्यों आता है। लेट परफॉर्म कैलकुलेशन ओनली फॉर आई। सो दिस क्रॉस प्रोडक्ट माइनस दिस क्रॉस प्रोडक्ट, टेल मी डेबा बाय डेबा वाई ऑफ डेबा फाई बाय डेबा जेड, वैल्यू क्या आएगी? डेबा बाय डेबा वाई ऑफ डेबा फाई बाय डेबा जेड, वैल्यू क्या आएगी? क्या लिखूं यहाँ पे मैं? इट इज एक्चुअली डेबा स्क्वायर फाई अपॉन डेबा वाई इंटू डेबा जेड माइनस, नाउ ये क्रॉस प्रोडक्ट, डेबा बाय डेबा जेड ऑफ डेबा फाई बाय डेबा वाई, सो इट बिकम डेबा स्क्वायर फाई अपॉन डेबा जेड इंटू डेबा वाई। एंड व्हाट इज दिस? डेबा स्क्वायर फाई अपॉन डेबा वाई डेबा जेड माइनस डेबा जेड डेबा वाई। ये क्या, इसकी वैल्यू क्या आएगी?
इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0। 0। पता ही है ये फाई को अगर आप पहले y से डिफरेंशिएट करते हो फिर z से डिफरेंशिएट करते हो इज एग्जैक्टली इक्वल टू फाई व्हेन वी डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू z एंड देन विद रिस्पेक्ट टू y। मतलब इससे वैल्यू चेंज नहीं होती तो आपका आंसर क्या आता है? 0 आता है। देयरफॉर दिस ऑल कोएफिशिएंट्स आर 0। दैट इंप्लाइज योर कर्ल ऑफ ग्रेड फाई इज ऑलवेज 0। ठीक है, और इसका मैं प्रूफ आपको नहीं दे रहा हूँ, इफ यू वांट यू कैन गो थ्रू। बट डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाई मतलब डाइवर्जेंस मतलब डेल डॉट होता है एंड वेक्टर क्या दिया उन्होंने? ग्रेड फाई। तो दिस इज इक्वल टू डेल का डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आता है? डेल स्क्वायर। ये आपको पता ही है। ए बार का ए बार के साथ क्या आता है? ए स्क्वायर। तो डेल का डेल के साथ क्या आता है? डेल स्क्वायर इंटू फाई। सो दिस इज योर नेक्स्ट फॉर्मूला। ये बस 1 मार्क के लिए आपको आने वाले। ठीक है, इसके आगे कुछ इसमें ज़्यादा आपको डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, नाउ यू कैन पुट योर रोल नंबर इन चैट बॉक्स फॉर द अटेंडेंस। Any doubt in this 10 formulas? Any formula which you want me to repeat again? है तो बोलो. And side by side also you can put your roll number in chat box for the attendance. Any सर हाँ सर आपने सर हाँ सर आपने जो एक्सप्लेन किया वो समझा सर, बट आपने ये जो पार्शियल डिफरेंशिएशन का बताया ना सर अभी, हाँ फाई जेड इक्वल टू जेड वाई है, तो सिर्फ कंटिन्यूअस फंक्शंस के लिए एप्लीकेबल होगा ना? and in our from M1 in our whole syllabus all our हाँ सर, continuous मतलब वो कभी है ही नहीं. बट फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, ये भी तो एक प्री Yes, कंडीशन होनी that is चाहिए the ना, नहीं तो condition. हमेशा That नहीं is the आएगा ना सर? condition. That is the condition. That function not only continuous, it is differentiable. Second derivative is also continuous. ये जो second derivative आप लेते हो ना, first partial derivatives are also continuous. Phi भी continuous चाहिए. Not only this, the first order partial derivatives of phi are also continuous. Then only हाँ सर, phi of phi z equal to phi of z bar. This is actual theorem. This is actual theorem. I think it is there in your M2. ये आपको M2 में था कहीं पे. Check whether these two values are equal or not. Okay. Yes, any other doubt? These are called as mixed partial derivatives. Mixed partial derivatives.